Hello. Hello everyone. Got connected? Yes, ma'am. Okay. So हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि रेशियो कैसे सॉल्व करना है एक्सेल पे. So they have given you the questions over here and उन लोग ने आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोला है. Find out your sales amount, closing stock amount, debtor amount and creditor amount. So formula will be same only for this, for finding out the closing stock, debtor amount and creditor amount. Formula आपका same रहेगा जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था. This formula. This is your data turnover formula. Okay. And second one is, this is the average collection period. You have to multiply with the 365 days, 12 months or 52 weeks. Whatever it depends upon your question. So in this question, they have given you the credit period allowed to your data, that is 2 months. That means you have to apply this formula, that is average data upon credit sales, multiply with the 12, because in this sum they have given you the 2 months. So you have to multiply with the 12. So here this is the solution is debtor collection period is equal to 2 months. They have given you the answer directly over here. So formula is debtor average we want upon creditor and multiply with the 12. So you can easily find out your debtor amount. That is because we have the credit sales. See, in this sum they have given you the sales directly over here. That is we have found out that is 12 lakh. हम लोग ने 12 lakh sales जो है हमारा वो find out किया. But in this sum they have not mentioned that there is a cash sales or credit sales. So it goes without saying, if there is a not mention anything, that means this 12 lakh is all on your credit sales. तो आपको अज्यूम करना है कि ये पूरा सेल्स जो है वो आपका क्रेडिट सेल्स है एंड यू हैव टू टेक एज अ क्रेडिट सेल्स इन दिस फॉर्मूला, दैट इज 12 लाख. क्लियर एवरीवन? So formula is average debtor upon credit sales multiply with the 12. 12 why? Because in this sum they have given you the 2 months credit period. So you have to multiply with the 12. So you will get debtor amount easily. That means you can, this is divide by this ना. So average divide by credit sales. So credit sales अभी यहाँ पे divide by में है. इसको हम लोग इजिकल टू की उस बाजू लेके जाएंगे. So आप यहाँ पे बोल सकते हो that is 12 lakh multiply with the 2 is equal to this multiply with this amount. So you will get your 24 lakh का amount. So here मैंने भी वही किया है. तो मुझे भी आंसर आया है. समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है? Yes, ma'am. ओके. सो आपको ये अमाउंट मिल गया. आफ्टर दैट जो भी अमाउंट मिला है उसको आपको यहाँ पे देखो डिवाइड वगैरह करना है. सो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे इजीली. फिर हम लोग ने ये मल्टीप्लाई किया था ना 12 लाख को. हम लोग ने क्या किया था, 12 लाख ऑलरेडी डिवाइड बाय में है, हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई किया विद द 2. सो यू विल गेट 24 lakh rupees over here. 24. Yes. So remember this is a multiply with 12. This is over is left over here. Debtor multiply with 12. So यहाँ पे ये जो multiply में है is equal to उस बाजू जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा. तो आपको क्या करना है, ये वाला अमाउंट इज इक्वल टू ये वाला अमाउंट डिवाइड बाय 12. जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ना डेटर मल्टीप्लाई 12, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है. सो आपको ये आंसर मिल जाएगा 2 लाख रुपीज. सो दैट विल बी योर डेटर अमाउंट. क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट कैसे एक्सप्लेन किया मैंने? जो समझ में आया कि आपको अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको उधर ही कैलकुलेशन करना है तो आपको मिल जाएगा वो आंसर. The formula is average debtor upon credit sales multiply with the 12. That means you have to find out your debtor amount. Okay. So we have to find out your debtor amount. तो debtor into 12 किया मैंने upon credit sales. So in this sum sales हम लोग ने पहले ही find out किया हुआ है तो मुझे वो अमाउंट मिल गया. और in this sum debtor collection period तो मुझे पता ही है that is 2 months. तो first you have to multiply with this. जो भी divide by में है उसको उस साइड लेके जाके पहले multiply करो. So 12 lakh into 2 that you will get 24 lakh. आफ्टर दैट जो ऊपर मल्टीप्लाई में है सो उसको उस बाजू लेके जाके उसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो 24 लाख अपॉन 12. सो यू विल गेट योर डेटर का अमाउंट दैट इज 2 लाख. तो जब आपको डेटर का अमाउंट मिला तो आपको यहाँ करना है डेटर इज इक्वल टू 2 लाख आपको यहाँ पे लिखना है. समझ में आया? जैसे हम लोग ने डेटर का अमाउंट फाइंड आउट किया वैसे यू हैव टू फाइंड आउट योर क्रेडिटर अमाउंट. कैसे? आप यहाँ पे देखो क्रेडिट पीरियड अलाउ बाय सप्लायर दैट इज 1 मंथ. जैसे हम लोग ने क्रेडिटर को 2 मंथ्स का हम लोग अलाउ करते हैं ना, वैसे ही क्रेडिटर दैट इज सप्लायर ने मुझे 1 मंथ का क्रेडिट दिया है क्रेडिट पीरियड. सो यू हैव टू फॉर्मूला अप्लाई विद दिस फॉर्मूला अपोजिट. दिस फॉर्मूला विल बी ओवर कलेक्शन पेमेंट पीरियड यू कैन से.
So this is the sorry, collection name, creditor payment period. So this is the payment period after 1 month. If I purchase today na, so I will pay it after 1 month. Okay. So आपको 1 month का दिया है. So this is the formula you have to apply over here. So this is the formula, creditor payment period. That is 1 month is given in the like question, you can say. Formula is average creditor upon credit purchase multiply with the 12. So ये सब में मुझे क्रेडिटर तो पता है क्या आपको? नहीं, क्रेडिटर ही तो फाइंड आउट करना है मुझे कि मेरा क्रेडिटर कितना है, वही तो फाइंड आउट करना है. जैसे कि पहले वाले सम में हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले वाले में डेटर फाइंड आउट किया था. अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट योर क्रेडिटर अमाउंट. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट योर परचेज अमाउंट. हाउ यू विल फाइंड आउट योर परचेज? सो परचेज के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. मैंने आपको उस दिन आपको सीओजीएस का फॉर्मूला बताया था. तो सीओजीएस का फॉर्मूला में आपके पास परचेज भी तो है अंदर. सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जो देखा था, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. नाउ इन दिस सम यू हैव कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, you have your opening stock, or sometimes you will be having your closing stock also. So आप easily purchase find out कर सकते हो. So जो भी purchase मिलेगा, you have to consider as a credit purchase. So I have solved this formula over here. That is closing stock, cost of goods sold is equal to opening stock plus purchase minus closing stock. जो formula है वो आपको formula यहाँ पे apply करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे solve करना है. क्लियर हुआ ये सब में? कुछ देख लो, ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग नॉर्मली. यहाँ पे ये सब में आपको क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, देखो 1,50,000 आपको यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है. क्लियर हो रहा है? इन दिस सम 1,50,000 दे हैव गिवन यू. क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है. मतलब ये सब में मेरे पास ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, और कॉस्ट तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया ही है ना, 9 लाख रुपीज. मतलब मेरे पास सब है यहाँ पे. 9 लाख रुपीज एज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, परचेज भी, मतलब ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 75,000 है. तो आप परचेज तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सी एक अमाउंट मिसिंग रहेगा तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नॉर्मल मैथ्स है जो आप लोग सॉल्व करते हो, तो यहाँ से आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा. जैसे कि ये सब में अगर आप देखोगे, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मुझे 8 लाख मिला था, सॉरी 9 लाख मिला था ना. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ से भी आप देख सकते हो. जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना मिला है मुझे? 9 लाख मिला है. सो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर 9 लाख है तो आपको क्या करना है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करना है. परचेज तो मेरे पास नहीं है, सो परचेज मिलेगा तो मैं ऐड कर दूंगी बाद में. अभी क्लोजिंग तो है ना, सो जस्ट डू इट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. ठीक है. सो ओपनिंग यू आर हैविंग दैट इज 1,50,000 एंड क्लोजिंग इज हैविंग दैट इज 75,000. तो आपको यहाँ पे मिलेगा 75,000. ठीक है. सो योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज 9 लाख minus 75,000. So you will get your credit purchase amount over here, that is 8,25,000. तो जैसे आपको परचेस का अमाउंट मिला, you have to multiply with this 1 month over here, and 8,25,000 डिवाइड बाय 12 आप इजीली कर सकते हो यहाँ पे. So you will get it this one, 68,750. क्लियर एवरीवन? सो आपको क्रेडिटर भी मिल गया ये समय. तो हम लोग को ये चारों अमाउंट मिल गया. सेल्स मिला 12 लाख, क्लोजिंग स्टॉक मिला 75,000, डेटर मिला 2 लाख, क्रेडिटर मिला 68,750, एंड परचेज वो लोग ने पूछा ही नहीं था, बट फिर भी हम लोग को मिला 8,25,000. बिकॉज फॉर सॉल्विंग दिस क्रेडिटर रेशो मुझे परचेज जरूरी था, सो परचेज मैंने फाइंड आउट किया. क्लियर विद दिस एवरीवन? सो वी हैव डन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन इन द एक्सेल शीट. वी हैव डन विद दिस. So from tomorrow onwards, we'll start the next topic. That is very important topic. Don't miss out. Okay. So thank you. Okay, ma'am.